we are going to discuss about credit card default prediction, and this is a classification project where we need to predict whether a person is going to be defaulter or not. Cool. This is your project summary where I have mentioned all those things related to the project and data set. Okay, what kind of columns we have, what functions or what methods we are going to use, what is the problem statement, and what could be the solution of that problem, right? After that, I have mentioned the project title. So this project title is predicting whether a customer will be defaulter on his credit card or not, right? And this is your problem statement. The description means those columns we have multiple columns. So the first column is x1, and x1 is represent amount of the giving credit, right? The x2 means gender, where we have only two details, either it will be a male or female. Then the third column is education, where we have graduate school, university, high school, and others. Then fourth is marital status, where we have married, single, and others. In this x5 column means we have age column, and from x6 to x11, and that is your payment history from April to September, right? After this like x11, okay. After that we have x12 to x17. So this x12 to x17, this is all about your amount of bill for each month. Each month means from April to September, right? Then we have this x18 to x23. This is related to amount of previous month, right? And x19 is all about your amount paid in the month of August. And this x23 means amount paid in April 2025. Okay. Okay, so guys, this is all about the column description. Let's import some dependencies. So those are some dependencies which I'm going to import here. So first is my numpy, first is my pandas, then I'm importing this numpy. After that we are working with cmon library, matplotlib, inline, then warnings to remove some warnings. I'm importing this warning. Then this is my plotly library. This is my plotly library, right? This is my plotly. After that plotly we have smooth. What is this smooth? Basically we use this smooth techniques for oversampling or undersampling the data set. We have already discussed a problem if my data set is imbalanced. Imbalance means, let's suppose we have a output column, and that output column is containing two values. Like let's suppose we have a gender column, and in this gender column male is 80% and female is 20%. So that is a imbalanced data set. Even this is a highly imbalanced data set. To deal with that kind of data set, we need to use this oversampling or undersampling solution, and that is known as smooth. So we are using a smooth technique where we have oversampling or undersampling, and this time I'm using oversampling. We'll discuss about that oversampling later on in detail, because this is the most important topic which we discuss today. Then I'm importing this pre-processing steps, that is standard scalar. After that I'm importing this train test split. Then we have this grid search CV, and this logistic regression I have import. Then random forest support SVM support vector classifier, then matrix, and this date time. After that I'm importing some those accuracy metrics, and those are again my some libraries like LGB and XGBoost and this XGBoost classifier, right? So yes, those are my some dependencies which I'm going to import here. Okay. After that, because this is a Excel data set, so I need to import that Excel library, and then I'm reading that Excel file. And if I check this head, the first 5 rows, so yes, those are my data set. But if you notice the actual labels we have on 0th row, right? So what will be my next task? My next task will be to replace those columns, replace those columns with my 0th row, right?
So this is my info. So yes, we don't have any null values in this data set, so there is zero null values. And if you notice here, we have all the columns in object format only. See, we have all the columns in object only. To store that data set, it takes approximate 5.7 MB. And if I check this df.sum, so yes, we have zero null values in this data set, entire data set. Okay. After that, I'm checking this df.tell, the last 5 rows. So yes, that is my data. And now we are moving to replace the first row as my header, and then I'm making this access, like set the access. After that, I'm converting all those data into integer, right? So once I done with that code, so yes, now we have those columns. So first column is id, then we have limit balance. After that, we have this gender column, then we have education, marriage, age, then we have pay 0, pay 2, pay 3, pay 4, like that. We have so many columns, and this is my output column where we have default payment next month. So this is my output column. Again, if I check this info, df.info, so we have total 30,000 rows available in this data set. So data set is quite गुड डेटा सेट हमारे पास एक बैलेंस, मतलब काफ़ी अच्छा डेटा सेट है. सर नेक्स्ट, यस सर एक बार दोबारा वो कोड समझाओगे. आपने डेटा टाइप चेंज किया था सभी का. डेटा टाइप चेंज किया, जस्ट पुटिंग दिस df.as टाइप एंड देन आई पुट दिस इंटीजर. क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट numpy, वहाँ पे एक फंक्शन, दो फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे, डी टाइप एंड एस टाइप. सो डी टाइप डेटा टाइप बताता था और एस टाइप हमारा डेटा टाइप को चेंज करता था. सो आई एम यूजिंग दिस इंटीजर कि डेटा टाइप हमारा कन्वर्ट हो जाए इनटू इंटीजर वैल्यूज, राइट? ओके सर. ओके ओके. आफ्टर दैट लेट्स मूव टू दिस ईडीए पार्ट. तो ईडीए में सबसे पहला जो हमारा कोड रहेगा, लेट्स चेक अबाउट दिस पे जीरोथ वैल्यू. सो यस, वी हैव सो मैनी लाइक 0, -1, 1, 2, दोज आर माई लाइक वैल्यूज अवेलेबल इन दिस पे जीरो कॉलम. व्हाट थिंग्स आई एम डूइंग नेक्स्ट, मेरे पास जितने भी कॉलम्स हैं लाइक पे 0, पे 2, पे 3, पे 4, पे 5, पे 6, जितने भी हमारे पास कॉलम्स थे उन सभी में हमने मेल्ट कर लिया. मेल्ट का क्या मतलब होता है, क्योंकि इन सारे पे कॉलम में हमारे पास ये डेटा है लाइक 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई जस्ट मेल्ट ऑल दोज डेटा सेट. तो जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी में हमें यहाँ पे दिखेगा कि 0 जो है वो कितनी बार आया है. सो यस, दिस इज़ द काउंट ऑफ 0 इन ऑल दोज कॉलम्स. ये जितने भी हमारे पे वाले कॉलम्स हैं उन सभी में 0 इतनी बार आया है, -1 इतनी बार है, -2 इतनी बार है, 2 इतनी बार है, 1 इतनी बार है, राइट? तो मेल्ट हमने कर लिया. आफ्टर दैट वी चेक द लेबल कॉलम, जो भी हमारा आउटपुट कॉलम है. नाउ टेल मी, डू वी हैव दिस इम्बैलेंस डेटा सेट और वी हैव दिस बैलेंस डेटा सेट? टेल मी, क्या हमारे पास इम्बैलेंस डेटा सेट सर. करेक्ट, एंड दैट इज़ अ हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट. और अगर मैं परसेंटेज देखूँ, सो यस, वी हैव 22% 1 एंड बाकी जो भी हमारा बचा है 73% हमारा 0 है. सॉरी, 77% वी हैव 0 and 22% we have 1, right? Okay, let's clean that data set. क्योंकि नल वैल्यूज़ हैं ही नहीं तो हमें क्लीनिंग करने की तो ज़रूरत है नहीं. बट क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पे 0, हमारे पास पे 0 के नाम से ऐसा कोई कॉलम है नहीं. यहाँ पे देखो, जो भी हमारी वैल्यूज़ स्टार्ट हो रही थी वो पे 1 से स्टार्ट हो रही थी, राइट? क्योंकि अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में है. तो पे 0 को हम रिप्लेसिंग विद पे 1, क्योंकि उससे कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे, बस हमारा कॉलम नेम अपडेट हो जाएगा. ठीक है? सो यस, मैंने इसको पे 0 को पे 1 से रिप्लेस कर दिया. नाउ वी हैव पे 1, पे 2, पे 3, पे 4, पे 5, पे 6. तो टोटल 6 मंथ का डेटा हमें यहाँ पे मिल चुका है. आफ्टर दैट आई एम चेकिंग कि डू वी हैव डुप्लीकेट वैल्यूज़ और नॉट. सो नो, वी डोंट हैव एनी डुप्लीकेट वैल्यूज़, राइट? आफ्टर दैट विल चेक अबाउट दोज कॉलम्स, क्योंकि ये मेरे पास सारे कॉलम्स हैं. एंड वी चेक द आउटलायर्स कि डू वी हैव सम आउटलायर्स इन आवर डेटा सेट और नॉट, राइट? तो आउटलायर्स के लिए आई एम क्रिएटिंग दिस फंक्शन एंड आई एम यूजिंग प्लॉटली लाइब्रेरी. एंड यस, दिस इज माई डेटा सेट. लाइक वी हैव ऑल दोज
Plotly, like I'm using the Plotly library, and here you can check the data points. Even when I'm going to hover my cursor on this plot, मुझे सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इज़ दिस इज़ माई मैक्सिमम वैल्यू, सारी वैल्यूज़ पे हमारा होवर हो रहा है. इवन व्हेन आई होवर ऑन दिस बार, तो मुझे पता चल रहा है व्हाट इज़ माई मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज़ लोअर फेंस, व्हाट इज़ अपर फेंस, एंड व्हाट इज़ योर क्वार्टाइल, एंड व्हाट इज़ योर मीडियन एंड मीन ऑल्सो, राइट. तो ये एक बेनिफिट होता है यूजिंग प्लॉटली लाइब्रेरी, राइट. एंड इट विल गिव यू द डिटेल्स फॉर ईच कॉलम. सी बिल अमाउंट 1 में भी सेम डिटेल हमें मिल रही है, बिल 2, मतलब सारे कॉलम्स में जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स थे ऑलमोस्ट वी हैव आउटलायर्स. हर एक डेटा सेट में हमारे पास आउटलायर्स अवेलेबल हैं. ओके, आफ्टर दैट आई एम क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम विद द नेम ऑफ हैशडेफ. बट उसमें कंडीशन क्या है? द फर्स्ट कंडीशन इज कि द पर्सन, कोई भी एक यूज़र है जिसका फर्स्ट मंथ में अमाउंट जो है वो ₹1 से ज़्यादा है, या फिर $1 आप ले सकते हो. मतलब जो भी ड्यू पेमेंट है वो $1 से ज़्यादा है. इसका मतलब क्या है कि उसने पहले मंथ में डिफ़ॉल्ट किया है. इट मीन्स कि उसने दूसरे मंथ में भी डिफ़ॉल्ट किया है, उसने तीसरे मंथ में भी डिफ़ॉल्ट किया है, इस तरह से 6 मंथ तक डिफ़ॉल्ट किया है. तो उसको हम बोलेंगे द पर्सन इज़ डिफ़ॉल्टर और नॉट. तो हमने एक नया कॉलम बना रहे हैं जिसका नाम है हैज़ डिफ़ॉल्टर, और हमने यहाँ पे एक कंडीशन डाल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ऑल दो 6 मंथ, मतलब जितने भी 6 महीने उन सभी में कुछ ना कुछ उसने डिफ़ॉल्ट किया है, तो वो पर्सन डिफ़ॉल्टर में जाएगा, अदरवाइज नो में जाएगा. ठीक है. तो यस, वी हैव अ न्यू कॉलम विद द नेम ऑफ हैज़ डिफ़ॉल्टर. अब हम क्या करेंगे, माई नेक्स्ट टास्क विल बी, ये मैंने क्या लिखा था, सैलरी मीन. ओके, आई डोंट नो ये क्या था. चलो ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ. सैलरी एंड जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल, फीमेल एंड मेल. अगर हम लोग मेल निकाल, अच्छा ग्रुप बाई मैंने समझाया होगा किसी प्रीवियस क्लास में, मैंने इसको ग्रुप बाई को समझाया होगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्टैक बार. अब स्टैक बार हमारा किस लिए यूज़ हो रहा है? ताकि हमें पता चल सके रिलेटेड टू दिस डिफ़ॉल्टर. ठीक है, ये हमारा स्टैक बार का कोड हो गया है. अब हम लोग चेक कर रहे हैं जो हमारा जेंडर कॉलम था उस पर क्या डेटा मिल रहा है. सो 1 इतनी बार है एंड 2 इतनी बार है. बट हमारे पास 1 और 2 था ही नहीं, तो क्या मैं 1 को मेल कर दूं एंड 2 को फीमेल कर दूं? यस, मैंने 1 को मेल कर दिया एंड 2 को मैंने फीमेल कर दिया है. राइट. नाउ फीमेल इतनी बार है एंड मेल इतनी बार है. अब अगर स्टैक बार देखें तो नाउ टेल मी, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो फीमेल हैं, फीमेल हैज़ डिफ़ॉल्टर 26% फीमेल डिफ़ॉल्टर होते हैं, मेल 30% डिफ़ॉल्टर होते हैं. तो क्या हम यहाँ पे एक अजम्पशन ले सकते हैं कि जो हमारे पास फीमेल अगर कस्टमर है तो वो कम डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हैं, बट मेल अगर कस्टमर है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट करेगा. राइट. आफ्टर दैट वी आर चेकिंग अबाउट एजुकेशन कॉलम. तो एजुकेशन में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास में, बट यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि 4, 5 और 6 तो कुछ है ही नहीं. तो मैंने 4, 5, 6 को 0 से रिप्लेस कर दिया है. नाउ वी हैव 0, 1, 2, 3 ओनली. राइट. तो यस, दिस इज़ फॉर 0, 1, 2 एंड 3. 3 का मतलब होता है हायर एजुकेशन, 1 का मतलब है योर 10th स्टैंडर्ड, 2 का मतलब है दिस 12th, एंड 3 का मतलब है ग्रेजुएशन, एंड दिस 4 का मतलब है कि हायर एजुकेशन उसने करी हुई है. तो अगर आप देखो तो जितना कम पढ़ा लिखा उतना ही कम डिफ़ॉल्ट कर रहा है. यहाँ पे डेटा सेट हमारा बता रहा है जितना कम पढ़ा हुआ उतना कम डिफ़ॉल्ट कर रहा है. सी यहाँ पे केवल 11% ही डिफ़ॉल्टर है, और जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पढ़ा था वो 33% डिफ़ॉल्टर है. अब मैरिज कॉलम को देखते हैं कि जिनकी शादी हो चुकी है बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, या जिनकी शादी नहीं हुई है बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जिनकी, सी दिस इज़ मैरिड, नॉट मैरिड एंड ये अदर्स में थे, तो यहाँ पे कुछ खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल पा रहे हैं. राइट. अब इसके बाद में लेट्स चेक अबाउट दिस पेमेंट कॉलम. तो पेमेंट कॉलम में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑन विच मंथ द पेमेंट, दिस पेमेंट डिलेड सबसे कम होता है. ऑन द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई में हमारा जो पेमेंट डिले हो रहा है वो सबसे कम हो रहा है. क्यों? कोई मुझे रीज़न बताएगा कि जुलाई में पेमेंट डिले की, मतलब कम डिले क्यों होता है? मतलब जुलाई में हर कोई ट्राई करता है पैसा सबमिट करने के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि
क्योंकि जुलाई सर फाइनेंशियल अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। बिल्कुल, और दैट इज़ द रीज़न कि कंपनी ज़्यादा फोर्स करती हैं कि पैसा सबमिट करो, राइट। ओके, अब आफ्टर दैट वी आर चेकिंग अबाउट दिस डिफ़ॉल्ट पेमेंट नेक्स्ट मंथ लिमिट 1 एंड लिमिट 2। ठीक है, एक नया डेटा सेट बनाया और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डिफ़ॉल्टर जो है, जो लोग नो डिफ़ॉल्टर हैं उनकी क्रेडिट लिमिट एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा है, बट जो लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं उनकी क्रेडिट लिमिट कम है। और ये सेंस भी बनाता है कि जो लोग ज़्यादा डिफ़ॉल्टर करते हैं उनकी क्रेडिट लिमिट कम होता है, और जो डिफ़ॉल्टर नहीं होते उनकी क्रेडिट लिमिट अच्छी खासी होती है। ठीक है, लेट्स चेक अबाउट सम नेगेटिव बिल्स। सो हमने सारे बिल्स यहाँ पे ले लिए हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन में लगा रहा हूँ कि अगर बिल्स जो हैं वो हमारे ज़ीरो से कम हैं उनको अलग निकाल दो, राइट। तो यस, ये जो बिल 1 है वहाँ पे हमारा 590 वैल्यूज़ हैं, बिल 2 में भी 669 है, बिल 3 में 655, इस तरह से बिल 6 में वी हैव 688। ठीक है, आफ्टर दैट चेक वाई आर सम बिल्स स्टेटमेंट अमाउंट ग्रेटर देन क्रेडिट लिमिट। हम ये चेक करते हैं क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जो बिल अमाउंट है वो लिमिट जितने दी है उससे ज़्यादा हो सकता है। तो सी हैज़ डिफ़ॉल्टर ज़्यादा है एंड नो ज़ीरो में ज़्यादा है एंड 1 में कम है। आफ्टर दैट वी आर चेकिंग कि भाई कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल यूज़ ही नहीं किए हैं। मतलब ये हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं 870 जिन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका बिल ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी ज़ीरो बिल है, राइट। तो ऐसे भी कस्टमर्स हैं हमारे पास में। इसका भी हमने डेटा निकाल लिया कि जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं वो लोग डिफ़ॉल्टर होते हैं या नहीं होते हैं, राइट। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर ईडीए। यहाँ पे हमने ईडीए कंप्लीट कर लिया है। आफ्टर दैट वी चेक अबाउट पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट दो चीज़ों में देखेंगे, पहले मैंने बिल अमाउंट में देख लिया, दिस इज़ माई पेयर प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फिर मैं पेमेंट में देखता हूँ, सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट। आफ्टर दैट वी मूव टू दिस कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स देखते हैं। नाउ टेल मी बच्चे, डू वी हैव मल्टी कोलिनियरिटी इन दिस डेटा सेट और नॉट? टेल मी, do we have multi-collinearity in this data set or not? Yes sir. Yes sir. Correct. So we have multi-collinearity in this data set. क्या कोई रीज़न बता सकता है कि क्यों है ये? मल्टी-कोलिनियरिटी है बट क्यों है? ऐसा कोई रीज़न, कोई ख़ास वजह? क्योंकि जिस पर्सन ने, देखो अगर कोई पर्सन पहले मंथ में डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो चांसेस ऑफ वेरी हाई कि वो दूसरे मंथ में भी डिफ़ॉल्ट करेगा। भाई किसी के पास अगर पैसा नहीं है पहले मंथ में तो दूसरे मंथ में भी नहीं होगा, तीसरे मंथ में भी नहीं होगा। तो इस तरह से कोरिलेशन जाएगा ही जाएगा, राइट। इसलिए मल्टी कोलिनियरिटी यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। सर ये पे 1 पे 2 जो कॉलम है ये मंथ बता रहे हैं सर? बिल्कुल, ये मंथ बता रहा है कि क्या पिछले मंथ में उसने डिफ़ॉल्ट किया था, नहीं किया था। और बिल MT1 और बिल MT2 बिल ये एमटी सर बता रहा है कि पहले महीने में कितना बिल था, दूसरे महीने में कितना बिल था। एंड दिस पे एमटी का मतलब है कि पहले महीने में कितना अमाउंट पे किया एंड दूसरे महीने में कितना अमाउंट पे किया है। ओके सर। हेलो। यस, हाँ सर, वो कोरिलेशन वाला एक बार दिखा दीजिए ना। वहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम पे कहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है? देखो ये 67 का है, ये 81 का है और ये बढ़ रहा है। मतलब पहले महीने का पहले महीने का दूसरे महीने में उससे ज़्यादा होगा, पहले महीने का तीसरे महीने में, मतलब ये बढ़ता चला जाएगा कोरिलेशन हमारा, राइट। सेम हमारा बिल अमाउंट में भी कोरिलेशन बढ़ रहा है। तो ये सेंस भी बनाता है कि अगर पहले महीने में डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो चांसेस है वेरी हाई कि दूसरे महीने में भी वो पर्सन डिफ़ॉल्ट करेगा ही। तो सर इन्होंने सिर्फ 6 मंथ तक का बिल अमाउंट पे किया है, क्योंकि बस पे 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे 6 से आगे तक जा रहे हैं। क्या 6 से आगे तक जा रहा नहीं, है? दोनों इक्वल है। नो सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नाउ क्लियर। 6 ही है, ठीक है। ओके 6 महीने का ही डेटा है। बाकी एज को मैं विंस में डाल रहा हूँ। विंस का मतलब है कि पहला विन हमारा बन रहा है 0 से लेके 21 ईयर का, फिर 21 से 30 का, फिर 31 से 40 का, 40 से 50, इस तरह से 80 ईयर्स तक का हम लोग विंस बना रहे हैं, राइट। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 मैंने विन बना दिए,
क्योंकि विन बनाने से हमारा थोड़ा सा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो यंग होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट करें, राइट। और जितना ज़्यादा एज उतना ही कम चांसेस होता है कि वो डिफ़ॉल्ट करेंगे, क्योंकि मेच्योरिटी आ जाती है, ये एक सेंस ही बनाता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा जेंडर कॉलम था उसको मैंने वन हॉट इनकोडिंग कर दिया, मेल को 1 से रिप्लेस कर दिया, फीमेल को मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया है। फीचर सिलेक्शन में मैंने एक्स को लाइक डिफ़ॉल्ट पेमेंट नेक्स्ट मंथ है वो एक्स में डाल दिया, बाई में मैंने डाल दिया सारे सॉरी एक्स में मैंने सारे फीचर डाल दिए, बाई में मैंने सिर्फ और सिर्फ आउटपुट कॉलम डाला है। और मुझे लगता है कि ये जेंडर, एजुकेशन, मैरिज एंड एज ये कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी के लिए मैंने ये कॉलम हटा दिए हैं, ठीक है। अभी के लिए बस मैंने ये कॉलम हटाए हुए हैं, ओके। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैंने इन कॉलम्स को हटाया होगा। वेट, एक्सटर्म ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में नहीं मैंने नहीं हटाया इनको, ठीक है। तो ये वाला कोड गलत लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 0 हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 1 हमारे पास बहुत कम है। अगर हम लोग आउटपुट कॉलम को देखें तो 0 हमारे पास बहुत ज़्यादा है और 1 हमारे पास बहुत कम है। इसका क्या मतलब है कि हमारा डेटा हाईली इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हाईली इम्बैलेंस्ड डेटा सेट के लिए हमें स्मूथ टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, बट उससे पहले हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं। 70% डेटा मैंने ट्रेनिंग में डाल दिया है, बाकी बचा हुआ 30% डेटा मैंने टेस्ट में डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग स्मूथ टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि जो लेबल्स हैं, लेबल्स को हम ऑलमोस्ट बराबर कर सकें, जितने हमारे ज़ीरोज़ हैं उतने ही हमारे 1 हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आता है कि सर डेटा तो हमारे पास ले सपोज़ 5 रो हैं, उन 5 रो को मैं 10 रो में कैसे बनाऊँ। ले सपोज़ मेरे पास एक पर्सन है राहुल का मेरे पास एक ही फ़ोटो है, राइट। तो राहुल का एक फ़ोटो को मैं 10 फ़ोटो में कैसे कन्वर्ट करूँ। क्या कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास में कि एक राहुल के फ़ोटो को हम लोग 10 फ़ोटोज़ में कन्वर्ट कर दें राहुल के। पहला फ़ोटो हो गया RGB में, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर में हो गया। क्या दूसरा फ़ोटो मैं ब्लैक एंड वाइट में ले सकता हूँ, वो उसका भी आउटपुट राहुल ही रहेगा, बट डेटा हमारे पास बढ़ गया। नाउ वी हैव 2 रोज़। तीसरी रो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा जो फ़ोटो रहेगा उसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि राहुल को थोड़ा सा हम लोग रोटेट करा सकते हैं 90 एंगल पे या 180 एंगल पे, राइट। फिर से हमारा डेटा बढ़ गया और रहेगा वो राहुल ही। इवन थोड़ा सा हम लोग शार्प कर सकते हैं इमेज को, एक और डेटा बढ़ गया। इमेज को हम लोग टिल्ट करा सकते हैं थोड़ा सा, एक और डेटा बढ़ गया। तो इस तरह से सेम डेटा को हम लोग बढ़ाते हैं। ये तो एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल आपको बताया। अब स्मूथ टेक्निक किस तरह से यूज़ करता है, देखो ये हमारे लेट्स सपोज दिस इज़ माय 0 लेबल एंड ये जो ऑरेंज कलर्स हैं ये हमारा 1 लेबल है। अब मुझे बताओ अगर इन दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में एक डेटा पॉइंट आएगा तो वो किस कलर में होगा, ऑरेंज कलर में होगा या ब्लू कलर में होगा। इस प्लॉट को देख के क्या लगता है, ऑरेंज में ना, बिल्कुल सही। ये देखो हमने नए डेटा पॉइंट्स बढ़ाए और ये जितने भी नए डेटा पॉइंट्स हैं ये इनका एक्चुअल कलर क्या होना चाहिए, ऑरेंज। यस, ऑरेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग डेटा पॉइंट बढ़ा देते हैं, राइट। और बस यही एग्जांपल स्मूथ टेक्निक में यूज होता है कि डेटा को हम लोग इस तरह से बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई डेटा पॉइंट डालूंगा तो वो हमारा स्क्वायर ही होना चाहिए। इवन इन दोनों के बीच में डालूंगा तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि वो ब्लू में जाए या ऑरेंज में जाए, बट इन दोनों के बीच में तो पक्का है कि वो ऑरेंज ही होगा, राइट। सेम स्मूथ टेक्निक हो हमने यूज़ की। सर स्मोक टेक्निक का यूज क्यों करते हैं? ओवर सैम्पलिंग करने के लिए, क्योंकि हाईली इम्बैलेंस्ड डेटा सेट है हमारा, मतलब ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा है, 1 बहुत कम है। 77 और 22% का रेशियो है। 77 हमारे पास 0 है और 22 हमारे पास 1 है, इसलिए ओवर सैम्पलिंग करने के लिए, ताकि 0 और 1 दोनों बराबर हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे स्मूथ इंपोर्ट किया और यहाँ पे हमने स्मूथ को इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। अब पहले 0 हमारे पास थे 16,304 एंड 1 थे हमारे पास 4,696, बट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दैट स्मूथ टेक्निक्स वी हैव सेम नंबर ऑफ दिस 0 एंड सेम नंबर ऑफ 1।
हमारे पास 0 भी बराबर हैं और 1 भी हमारे पास अब बराबर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्मूथ टेक्निक का यूज़ करके ओवर सैम्पलिंग कर दी है, और ओवर सैम्पलिंग में ये वाला एग्जांपल आई होप आप लोग कभी नहीं भूलोगे। और जो मैंने अभी एग्जांपल बताया राहुल वाला कि एक फ़ोटो है हमारे पास, क्या हम उस एक फ़ोटो से 10 फ़ोटो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने, सैलरी स्पेंड रिच रिच पुअर, हाँ ठीक है। ले सपोज हमारे पास ये डेटा है और मैं चाहता हूँ कि रिच का एक और डेटा हमारा बढ़ जाए। नाउ टेल मी, अगर किसी भी पर्सन की सैलरी 50,000 होगी और स्पेंड उसके 12,000 है, तो वो रिच होगा या पुअर होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है 20 से 10,000, मतलब 20,000 सैलरी है और 10,000 उसका स्पेंड है, तो वो पुअर में आ जाता है। सैलरी 10,000 है और 20,000 खर्च कर रहे हैं, तो वो पुअर में है। बट यहाँ पे सैलरी 50,000 है और स्पेंड भी 12,000 है, तो वो रिच में जाएगा, राइट। और इसी तरह से हम लोग नए डेटा पॉइंट्स को बनाते हैं, राइट। सेम यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल बताया था सैलरी वाला, सैलरी स्पेंड्स एंड दिस रिच और नॉट रिच आउटपुट, ठीक है। और यहीं पे हमने एक नया लाइक एग्जांपल आप समझ सकते हो। इवन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको भी मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मैं एक डेटा पॉइंट बनाता हूँ जहाँ पे सैलरी और स्पेंड और आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, रिच और नॉट रिच। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर सैलरी हमारी 40,000 से ऊपर है, अगर सैलरी 40,000 से ऊपर है तो वो रिच में जा रहा है, और 40,000 से कम है तो वो पुअर में आ रहा है, राइट। क्योंकि ये डेटा पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे एक डेटा पॉइंट ये बना दूँ तो दिस विल बी अ पुअर और रिच। यहाँ पे अगर मैं डेटा पॉइंट Poor. बनाऊँ पुअर आएगा, Poor. और यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ तो रिच में Rich. जाएगा। ये बिल्कुल सही, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही। एंड ये था वो एग्जांपल जो राहुल के इमेजेस की हम लोगों ने बात करी थी। सर टेक्निकली देखा जाए तो एक्सपेंसेस के बेस पे वो बता रहे हैं ना, जैसे सैलरी 90,000 और एक्सपेंस 80,000 हो गए, तो सर एट दैट टाइम सर हाँ, उस टाइम पे ये पुअर में जाएगा, तो पुअर। ओके बिल्कुल, ठीक है। ये इमेज के लिए था कि एक हॉरिजॉन्टल इमेज है, फिर वर्टिकल इमेज एक और ले लिया, फिर एक और इमेज 45 रोटेशन, फिर -45 ब्लर। सर ऐसे कह सकते हैं उसका सेविंग सर 50% से ज्यादा है तो सर वो रिच होगा, और सेविंग उसका 50% से कम है तो सर वो पुअर होगा। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, मतलब पैटर्न्स हमें ही फाइंड करने हैं। नहीं सर, ऐसे कैसे कर एक्सपेंसेस को ले लो या फिर सेविंग्स सकते? को इसके ले जो लो। 40% के नीचे है सपोज करिए, और वो सेविंग 50% से ज्यादा कर रहा है, तो उसको रिच कहिएगा। 40% नहीं, दो चीज़ें चलेंगी, पहला होगा हमारा स्पेंड और दूसरा होगा रिच। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि जो भी सैलरी है, सैलरी इससे कम तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, राइट। तो सर और ये सब उसके सब स्पेंड 40,000 से मतलब एक नीचे तो है। 40,000 से कम सैलरी ना हो, और अगर 40,000 से कम सैलरी है तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट पुअर में चला जाएगा। और अगर सैलरी 40,000 से ऊपर है तो उसकी जो स्पेंड्स हैं वो 50% से कम होने चाहिए, बस। अब सबसे पहली एल्गोरिथम हम लोग यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इम्प्लीमेंट किया, कुछ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग्स लगाई, और अगर हम लोग यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करें तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज़ 57 और टेस्ट एक्यूरेसी इज़ 68। तो मॉडल की एक्यूरेसी बहुत कम है, और जब मॉडल की एक्यूरेसी कम है तो प्रिसीजन रिकॉल F1 ROC कब और ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स तो ख़राब होंगे ही होंगे। इसके बाद मैं रैंडम फॉरेस्ट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। रैंडम फॉरेस्ट हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है, और रैंडम फॉरेस्ट में ठीक ठाक एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। देखो 99 एंड 78, तो रैंडम फॉरेस्ट में हमें ठीक ठाक एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। बट फिर भी ये मॉडल जो है वो ओवरफिटिंग में है, क्योंकि ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा और टेस्ट एक्यूरेसी काफ़ी कम है। और ये रहा हमारा प्रिसीजन एंड रिकॉल, एंड दिस इज़ माय कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इसके बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं रैंडम फॉरेस्ट विद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद में भी कुछ खास फ़र्क हमें देखने को मिला नहीं है, ठीक है। इसके बाद में डिसीजन ट्री को यूज़ करते हैं। डिसीजन ट्री में हमें 66 और 74 की एक्यूरेसी देखने को मिली है। काफ़ी डिसेंट सा मॉडल है ये, ओवर फिटिंग नहीं है, बट कह सकते हो कि अंडर फिटिंग यहाँ पे मॉडल हो गया है। मतलब ट्रेनिंग पे भी इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है और टेस्ट पे भी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। एक्जीबूस्ट को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो एक्जीबूस्ट की एक्यूरेसी 90 एंड 77। तो एक्जीबूस्ट की भी एक्यूरेसी कुछ खास हमें देखने को मिल नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा प्रिसीजन रिकॉल एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स।
अब जितने भी मॉडल्स हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं सभी की समरी निकालते हैं। तो ये रहा लॉजिस्टिक रिग्रेशन की सारी एक्यूरेसीज। दिस इज रैंडम फॉरेस्ट विद ट्यूनिंग, देन डिसीजन ट्री एंड एक्जीबूस्ट क्लासीफायर। अगर मैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी की बात करूँ तो सबसे अच्छी ट्रेनिंग एक्यूरेसी है रैंडम फॉरेस्ट की। बट टेस्ट एक्यूरेसी की बात करें तो टेस्ट एक्यूरेसी सबसे अच्छी है अगेन रैंडम फॉरेस्ट की ही। प्रिसीजन की बात करें सबसे ज़्यादा प्रिसीजन किसका है, तो सबसे ज़्यादा प्रिसीजन भी हमारा रैंडम फॉरेस्ट का ही है। और रिकॉल की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिकॉल वैल्यू है हमारी डिसीजन ट्री की, राइट। तो जिस हिसाब से हमें मॉडल की जो भी एक्यूरेसी हमें फोकस करना है हम उस मॉडल को पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें प्रिसीजन पे जाना है देन वी यूज़ दिस डिसीजन ट्री, रिकॉल पे जाना है तो हम रैंडम फॉरेस्ट को यूज़ करेंगे। मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी देखते हैं। सो मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी बेसिकली क्या बताता है कि कौन सा कॉलम कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैरिज कॉलम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा, फिर पे वन कॉलम कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर सेक्स कॉलम हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर बिल अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं इसको शार्प लाइक ये वाला प्लॉट दिखाऊँ यहाँ पे आपको, सो मैरिज कॉलम सबसे ज़्यादा, फिर पे वन, फिर सेक्स, फिर बिल अमाउंट वन, पे अमाउंट वन, फिर लिमिट बैलेंस। तो यस ये हमारे कॉलम्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन दिस आउटपुट कॉलम, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेम मॉडल को एक और तरीके से हम लोग मतलब सेम डेटा सेट का यूज़ करके हम लोग एक और कुछ टेक्निक्स और यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव कर पाते हैं या नहीं। दिस इज माई डेटा सेट। बाकी ये रहा कुछ डेटा सेट पे टेक्निक्स कि हमने ज़ीरो थ्रो को इसके हेडर बना दिया है, उसके बाद में सारे कॉलम्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद में मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट पेमेंट जो आउटपुट कॉलम था उसको इस डिफ़ॉल्टर बना दिया है। देन ये दो चीज़ें मतलब ये तो हो गया प्री प्रोसेस मतलब डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स कि पे ज़ीरो को हमने सितंबर कर दिया, पे टू को हमने अगस्त कर दिया, पे थ्री को हमने जुलाई कर दिया, ताकि हमारे पास एक्चुअल नेम हो जाए सभी के लिए। उसके बाद में स्मूथ टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ताकि 0 और 1 बराबर हो जाएं, क्योंकि ये हमने पहले भी किया था, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ फीचर इंजीनियरिंग। और इसमें मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट वैल्यू कर लिया। मतलब हम देख रहे हैं कि जो भी पेमेंट सितंबर में उसने डिफ़ॉल्ट किया, फिर पेमेंट अगस्त में डिफ़ॉल्ट किया, फिर पेमेंट जुलाई, इस तरह से जितने सारे मंथ में जो भी पेमेंट उसने डिफ़ॉल्ट किए हैं उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया कि इस पर्सन ने जो पहली रो है इसने टोटल 5 महीने में डिफ़ॉल्ट किया है, दूसरी रो ने टोटल 2 मंथ में डिफ़ॉल्ट किया है। तो एक नया कॉलम बनाया जिसमें सारे डिफ़ॉल्ट्स हमने ऐड किए और उसको हमने पेमेंट वैल्यू बना दिया। एक और कॉलम हम बनाते हैं ड्यूज़, हर एक मंथ को लेके। तो ये जो पहली रो है इसका इतना ड्यू है, $3,913 का ड्यू है इस फर्स्ट पर्सन पे। तो माइट भी पॉसिबल कि ये 2 नए कॉलम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएं, बेनिफिट करें, ठीक है। बस वही हम लोग लेके चलते हैं कि ये कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ये फीचर इंजीनियरिंग पहले ही हम लोग कर चुके हैं, 0 1 मतलब मेल फीमेल इनको हमने रिप्लेस किया ही था। 1 हॉट इनकोडिंग लगा दिया हमने एजुकेशन एंड मैरिज कॉलम पे, ठीक है, इस पर भी 1 हॉट इनकोडिंग लगा दिया। अब एक्स और वाई को अलग अलग कर लिया, स्टैंडर्ड स्केलर इम्प्लीमेंट कर लिया और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया है। अब हम लोग सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन दिस इज़ माई एक्यूरेसी 71 एंड 72, ठीक है। ये रहा हमारा प्रिसीजन, रिकॉल एंड कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। अब रैंडम फॉरेस्ट इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। रैंडम फॉरेस्ट में काफ़ी बेहतर एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, 99 एंड 83। इतनी अच्छी एक्यूरेसी पहले हमें नहीं मिली थी। सो जस्ट एडिंग टू न्यू कॉलम्स वी आर एबल टू गेट गुड एक्यूरेसी, ठीक है। और ये रहा हमारा प्रिसीजन, रिकॉल और कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। इसके बाद में डिसीजन ट्री को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो डिसीजन ट्री में 77 एंड 75 की एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। डिसीजन ट्री के बाद में एक्जीबूस्ट को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो एक्जीबूस्ट में भी 90 और 82 की एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बेहतर प्रेडिक्शंस हो रही हैं। अब सेम अगर सारे मॉडल्स को मतलब इवेल्युएट करें और देखें तो यस दिस इज़ माई एक्यूरेसी आफ्टर लाइक सेकेंड वे टू क्रिएट द मॉडल्स, जहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल्स थे ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, देन डिसीजन ट्री क्लासिफायर और एक्जीबूस्ट क्लासिफायर। ट्रेनिंग एक्यूरेसी हमारी ये आई हैं। अगर हम लोग देखें ट्रेनिंग एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है रैंडम फॉरेस्ट की, टेस्ट एक्यूरेसी सबसे हाई किसकी है, अगेन
रैंडम फॉरेस्ट। प्रिसीजन सबसे हाई किसका है, तो प्रिसीजन सबसे हाई है हमारा रैंडम फॉरेस्ट का। रिकॉल सबसे हाई किसका है, रैंडम फॉरेस्ट का ही, ठीक है। यहाँ पे विनर कौन होता है, रैंडम फॉरेस्ट। कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया, जो भी अभी तक हमने सारी चीज़ें करी हैं वही हमने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट योर क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट प्रेडिक्शन क्लासिफिकेशन मॉडल।